Dear students, Assalamu alaikum to all of you. I welcome you. I welcome you all to my channel, watching this channel continuously. I welcome you all. Now, dear students, before we are going to discuss the next topic, that is how was indigo cultivated. Let's have a recap. Let's have a look what we have read in previous chapters. At first, we learned about that East India Company. In the beginning of this chapter, we learned that the East India Company was made Diwan of Bengal on 12 August 1765 by Shah Alam II, Mughal Emperor, who was at the time the Mughal Emperor. That was Shah Alam II, and Robert Clive was at the time from the company of East India Company, who was the leader of that company at that time. That was Robert Clive. Accepted Diwani of Bengal. So after that, we have another chapter. We have another topic. Sorry, that was another topic we have. That was the permanent settlement, which took place between landlords of Bengal and the captain, that was Lord Cornwallis, in 1765. And after that permanent settlement, when the Shah Alam II, when the company got the Diwani rights from Shah Alam II, Mughal Emperor, Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa in 1765. So they tried many methods to improve the agriculture land. So one of them was the permanent settlement, which was fixed for 10 years. That was an agreement between landlords of Bengal and the company commander at that time, Lord Cornwallis. The third attempt was from the East India Company or the Britishers. That was the Mahalwari system in the early 19th century by Hart Mackenzie. And the third attempt by them was the Monroe system. That was Monroe system, or we can call it Ruthway system. And it was first tried by Captain Alexander Reed. It was first tried by Captain Alexander Reed on small plots, which was taken away at that time from Tipu Sultan, who was defeated recently in that battle. So this Monroe system was developed by Thomas Monroe at that time. So that was called the Monroe system. And the next topic that we have learned about, we have explained it well, that was, does color have a history? Does color have a history? In this topic, we have briefly explained it, that we have come to learn it, we have fully understood it, that how does color have an effect in our history. That was indigo, which was a plant which produced a type of color, that is blue color. Rich blue color was from India. And the second, which was compared to it from the European countries, that was another plant that was called wort. But the wort, as compared it to with Indian indigo, was a dull pale blue, but the Indian color indigo blue was very rich blue color. So after discussing these topics, there another topic now we are going to today discuss about, that's now how was indigo cultivated. So in the last chapter, we also have that how Britain turned towards India again. ये भी हमने पढ़ा था कल. So it was due to the industrialization in Europe in 18th century. Due to industrialization, the cotton production at that time began to expand, and so after that there was the need of blue color for designing the clothes. So they now look again towards India for this to fulfill their needs at that time. So that's why Britain looks towards India now again for this to meet their needs. And that was, we are seeing in that topic, we have seen that in 1780 it was only 30% in European markets. Only 30% of indigo was in European markets sold. But in 1810, 95% of this indigo was sold in European market.
So that's why we see a huge change in this ground. So after that, now we are going to discuss the topic, that is how was indigo cultivated. These are the topics which we have already discussed. You have already understood about that. I explained it well. Now we are going to discuss today that's how was indigo cultivated. अब इंडिगो जो है, ये जो ब्लू रिच कलर है, तो ये किस तरीके से कल्टिवेट किया जाता था। तो दो तरीकों से इसकी काश्त होती थी। एक होता था निज और दूसरा होता था रियत। एक होता था निज, दूसरा होता था रियत। तो दो तरीकों से ये इंडिगो काश्त किया जाता था। एक होता था निज और दूसरा होता था रियत। So there were two main systems of cultivation. One was niche and the other was real. इन दो तरीकों से क्या किया जाता है, इन दो तरीकों से जमीन को काश्त किया जाता है। किसके लिए? इंडिगो के लिए। किसके लिए? इंडिगो के लिए। तो इंडिगो सबसे बेहतरीन इंडिगो जो ब्लू कलर देता था, जो काफी अट्रैक्टिव था, और जो पूरे जो डिजाइनर थे, कपड़े के जो डिजाइनर थे, जिनको वो पसंद था, तो वो था हिंदुस्तान का इंडिगो। जो इंडिगो जो प्लांट, जो इस इंडिगो प्लांट से अभी कलर आता है, तो वो ये पसंद करते थे। तो बहरहाल निज कल्टिवेशन, तो पहले देखेंगे निज कल्टिवेशन में, क्योंकि दो तरह की काश्त होती थी, या दो तरह की, एक होती निज, दूसरा होता था रियल। तो पहले देखेंगे निज में क्या होता था। इन निज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? So in niche cultivation अगर हम देखेंगे, इसमें क्या होता था? The planter produced indigo in lands. जो प्लांटर खुद होता है, प्लांटर जो होता था, तो वो क्या करता? वो इस जमीन को खरीदता था, या तो वो इस जमीन को खरीदता था, तो उस तरीके से इसमें बोता था। उसके बाद वो लेबर जो होती थी, यानी कि वो लेबर को हियर करता था, यानी कि वो किराए पर लेबर ले आता था। तो पहले या तो वो जमीन को खरीदता ही था उनसे, जिम्मेदार जो यहाँ पर थे, जिनके हेरिडिटी राइट्स थे, जिम्मेदारी के जिनके, तो या वो इनसे जमीन खरीदता था। किसके लिए? इंडिगो के लिए, क्योंकि उसको इंडिगो वहां पर प्लांट करना था। तो या तो वो उसको यानी कि बाई करता था, या उसके बाद क्या करता था कि जो लेबर होती थी, उस लेबर को वो किराए पर ले आता था। कि एक मिसाल के तौर एक एग्रीमेंट के था कि हाँ, आपको मेरी जमीन में काम करना है, तो आपको क्या, मैं इसके लिए बदले में आपको मैं ये इतना पैसा मुआवजा दूंगा। तो इस तरीके से प्लांटेशन होती थी। किसमें? निज प्लांटेशन। तो निज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, जो कि वो डायरेक्टली खुद ही कंट्रोल करता था, उसकी लुक आफ्टर वो खुद ही करता था। he either bought the land, या तो वो उसको खरीदा, और rented it from other जिम्मेदार, या वो दूसरे जिम्मेदारों से इसको किराए पर लेता था। उसके बाद उन लोगों को, यानी कि जिम्मेदार से ये प्लॉट जो लेता था, उसको यानी कि किराए पर लेता था। उसके बाद इंडिगो प्रोड्यूस करता था। प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉय, यानी कि सीधे तौर पर ये लोगों को सीधे तौर पर एम्प्लॉय, यानी कि वहां पर काम में लगाता था। हियर लेबर्स, यानी कि जो ये लेबर डालता था, हियर लेबर जो किराए पर लेता था, उनको ये डायरेक्टली काम में लगा था, और ये खुद उनके साथ पैसे उनके खुद ही देता था उनको। कौन? जो प्लांटर्स होते, जो प्लांटर्स या तो लैंड को इसमें बाई करते, नीच करते थे, या तो इसको लैंड को बाई करते थे, या क्या करते थे, या दूसरे तरीके से वो इसमें क्या करते थे कि इट रेंट फ्रॉम जिम्मेदार, या तो जिम्मेदारों से इसको ये यानी कि किराए पर ले आते थे। उसके बाद जो इसमें जो वर्कर्स होते थे, उनको ये खुद ही कहते थे, पैसे देते थे, और लुक आफ्टर ये खुद ही इसका करता था प्लांटर्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे रैयत सिस्टम में, अब रैयत सिस्टम में, क्योंकि दो सिस्टम में, एक तो निज है, दूसरा है रैयत सिस्टम। तो रैयत सिस्टम क्या होता है? रैयत सिस्टम होता है कि खुद काश्तकार, यानी कि जो जमीन में खुद हल जोतता है, सह गो किसान पान जमीन कर, सह गो रियत, यानी कि पान कर, पान लुक आफ्टर कर, तो ये गो रियत सिस्टम के अंडर द रियत सिस्टम इंडिगो cultivation was done by the reyos to sign a contract or an agreement called seta। यानी कि क्या होता था, जो रयोत होता था, अब वो जमीन पर खुद यानी कि काम करता था। तो दूसरा वो होता था कि जो आप प्लांटर्स थे, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता था। उस एग्रीमेंट को वो सत्ता कहते थे, या आपकी किताब पर पट्टा भी लिखा गया है। तो बहरहाल एक किस्म का एग्रीमेंट होता था, जिसको सट्टा कहते थे, कि इनके दरमियान एक किस्म का एग्रीमेंट हो जाता है। किसके दरमियान? रैयत और इसके अलावा प्लांटेशन जो प्लांटर्स होते थे। तो वो यहाँ क्या आ गए, उन्होंने क्यों इंडिगो प्लांटेशन में हिस्सा ले लिया,
क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन जो हिंदुस्तान में यानी कि इंडिगो होता था, तो वो उसमें काफ़ी प्रॉफिट इस वक्त आता था, प्लांटर्स को काफ़ी प्रॉफिट था। इस वजह से वो यहाँ पर किसके लिए, इसके लिए आए कि वो यहाँ से इसकी प्लांटेशन करने, किसकी, यानी कि जो फ्रांस से आए, ब्रिटेन से आए, यूरोपियन कंट्री से यहाँ पर आए हिंदुस्तान में, वो प्लांटर्स यहाँ आए कि यहाँ हम इंडिगो की प्लांटेशन करें। वजह इसकी यही थी कि यहाँ इसका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था, इसलिए वो यहाँ पर आए। तो पहले में नीच कल्टिवेशन, दूसरे में आप क्या है कि दूसरा क्या होता है, वो था रोयत सिस्टम। तो रोयत सिस्टम क्या सिस्टम है कि यहाँ पर जो काश्तकार यानी कि जो किसान जो है, उसके दरमियान और इसके अलावा किसके दरमियान, यानी कि जो जमीन को जोतता है, जो जमीन में हल जोतता है, उसके दरमियान और इसके अलावा जो प्लांटर्स हैं उसके दरमियान एक मुआहिदा होता है जिसको सट्टा कहते हैं। तो मुआहिदे में क्या एग्रीमेंट जो होता है कि आप क्या देंगे और मैं क्या दूंगा, सीड्स कौन देगा, ड्रिलिंग कौन करेगा, प्लो कौन लाएगा, ये जिसके लिए बेल चाहे तो वो कौन देगा, तो इसके लिए एग्रीमेंट है, पैसे कौन देगा। इस तरीके से एग्रीमेंट होता था, दैट वाज कॉल्ड सट्टा। समटाइम्स द प्लांटर्स प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रेल्स, यानी कि कभी कभी ऐसा होता था कि वो प्रेशरलाइज किसको करते थे, ये जो प्लांटर्स होते थे वो प्रेशरलाइज किसको, विलेज हेडमैन को, जो गांव का बड़ा होता था। तो महलवारी सिस्टम में आपने देखा है कि उसने क्या कि हम जमीन नापेंगे या जमीन का एक जायजा लेंगे तो वो हम पूरे गाँव का लेंगे। तो महलवारी सिस्टम में उसके वो जॉन हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। बहरहाल तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि उन्होंने प्रेशराइज किया, प्लांटर्स ने प्रेशराइज किया किनको, विलेज हेडमैन को, किसके बदले, जो राइट है इसके बदले आप हमें साथ एग्रीमेंट करो। अगर कभी वो उनके साथ एग्रीमेंट पर राजी नहीं होते थे तो इसके बदले में वे विलेज हेडमैन को प्रेशराइज करते थे, उस पर उसको फोर्स करते थे। तो उस वजह से उस पर जो दबाव डालते थे कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट करो, किसके बदले में, जो रियत है उसके बदले में, जो रियत है उसके बदले में हमारे साथ एग्रीमेंट करो। तो कभी कभी ऐसा भी होता था, pressurized the village headman to sign the contract on behalf of Rayuts. After signing, Rayut got cash in advance from the planters. अब क्या होता था, अब जब एग्रीमेंट हो गया, एक बार आपने एग्रीमेंट किया, आपने कमिटमेंट कर दी, तो आपको क्या है कि आपको कैश मिलता था। तो वो जानबूझ करके भी उनको लोन फराहम करते थे, क्योंकि वो इसमें फंस गए, इस लालच में वो फंस जाते। जैसे आपने कल पढ़ा, पूरी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। प्लांटर्स आफ्टर टेकिंग द लोन, द Rayut was committed to grow indigo on 20% of his land at least, कम से कम, यानी कि जब वो कैश लेता था, इसके लिए जब वो कैश लेता था इस इंडिगो को, यानी कि अपनी लैंड पर सो करने के लिए, इसको प्लांट करने के लिए, तो रयोत के दरमियान और इसके अलावा प्लांटर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट होता था जो यूरोपियन से ज़्यादा थे, तो बारह हिंदुस्तान के भी थे, यूरोपियन के भी थे, तो उनके दरमियान जो एग्रीमेंट होता था, तो उस एग्रीमेंट के तहत क्या होता था कि उनको कम से कम, यानी कि एक रैयत को, जो किसान पर, जो इस वक्त जमीन पर जो है, जो जमीन पर हल चलाता है, जो सो भी करता है और लुक आफ्टर भी कर सकता है, तो उसको क्या कहें, कम से कम उसके प्लॉट पर 25% जो है इंडिगो होना चाहिए ऑन 20% ऑफ हिज लैंड, यानी कि 25% जो है उसकी लैंड है उस पर इंडिगो होना चाहिए था। तो बहरहाल द प्लांटर्स प्रोवाइडेड सीड्स, अब जो प्लांटर्स होते थे उन्हें क्या कि हम आपको क्या देंगे, एग्रीमेंट के दरमियान, एक सट्टा इनके दरमियान चल रहा है, रैयत और इसके लिए प्लांटर्स के दरमियान, कि हम क्या देंगे आपको, तो हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड सीड्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अलावा प्लांटर्स ने कहा हम ड्रिल्स प्रोवाइड करेंगे, हम ड्रिल्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कल्टीवेटर जो था या रैयत था, उसने क्या किया कि उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, अगर प्लांटर उसको ये करना है कि वो सीड्स देंगे, और इसके अलावा ड्रिलिंग के लिए, यानी कि ज़मीन में हल चलाने के लिए, या ज़मीन या जो हल है वो प्रोवाइड करेंगे। तो कल्टीवेटर्स को क्या करना है, प्रिपेयर द सॉइल, उसको ज़मीन तैयार करनी है, तो ड्रिलिंग वो देंगे, ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए सामान वो देंगे, और इसके अलावा सीड्स जो है वो फराम करेंगे। लेकिन ज़मीन को तैयार करना किसका काम है, ज़मीन को तैयार करना किसका काम है, कल्टीवेटर का, या जिसको राइट का कह सकते हैं। और इसके अलावा सोवर द सीड, उसको यानी कि सीड जो है वो खुद ही बो सकता है, उसको खुद ही ज़मीन में सीड जो है वो उनको खुद ही ज़मीन में सीड जो है वो बो करने, वो कर सकता है, ज़मीन में जो सीड्स हैं तो वो खुद ही लगा सकता है। इसका मतलब है कि एक एग्रीमेंट होता है किसके दरमियान, प्लांटर्स और इसके अलावा कल्टीवेटर्स के दरमियान, प्लांटर्स और कल्टीवेटर्स के दरमियान, या इसको राइट कह सकते हैं, एक एग्रीमेंट होता है जिसको सट्टा कहते हैं। तो प्लांटर्स कहते हैं कि हम आपको क्या देंगे, सीड्स देंगे, हम आपको ड्रिलिंग के लिए, यानी कि ड्रिलिंग करने के लिए जो सामान होगा वो हम आपको देंगे, और रैयत को क्या करना, उसको लुक आफ्टर करना है ज़मीन का। उसके अलावा उसको क्या करना है कि ज़मीन में जो सीड्स वो कर सकता है वो। दूसरा है द कल्टिवेशन राइट, प्रिपेयर द सॉइल, सोवर द सीड,
एंड लुक आफ्टर द क्रॉप, और इसके अलावा इसको तीसरा ये काम करना है कि इसकी देखभाल, इस ज़मीन की देख रेख जो है वो किसको, कल्टिवेटर को ही करनी है। तो ये एक एग्रीमेंट होता था इनके दरमियान, जिसको कहते हैं रोहित सिस्टम, या इसको कहते हैं निज कल्टीवेशन। तो उसको कहते हैं रहित कल्टीवेशन, तो उसको ये निज कल्टीवेशन। बहरहाल ये हमने ऊपर यानी इन निज कल्टीवेशन में हमने पढ़ते हैं हम रहित कल्टीवेशन के बारे में। राइट, प्रिपेयर द सॉइल, सोवर द सीड, उसके अलावा क्या पढ़ा आपने, लुक आफ्टर द क्रॉप्स। दूसरा है कि प्लांटर्स बॉट इंडिगो सीड्स एट लो प्राइसेस। तो जो प्लांटर्स होते वो काफ़ी चालाक लोग होते थे, और उनका मेन मोटिव भी यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। उनको इससे गर्ज नहीं था कि यहाँ की सॉइल जो है उसको कितना नुकसान हो जाए, उससे उसके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तो मेन इसके लिए आते थे कि उनको प्रॉफिट चाहिए। तो बहरहाल तो यहाँ क्या हो जाता है कि जो सीड्स वो आप लेते थे, सीड्स तो यहीं के थे, अब सीड्स जो लेते थे तो वो क्या अच्छे सीड्स, तो वो यहाँ के जो सीड्स लेते थे वो लो प्राइस पर लेते थे। तो इस तरीके से दोबारा ये होता है कि जो रैयत यानी कि जिसकी जो अगर उस तरीके से पैसे अगर इसके हाई होते, अगर इसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती, तो इस तरीके से वो काफ़ी पैसा जो है उस कर्जे को चुका पाता है। लेकिन वो कर्जदार ही रहा, क्योंकि उसकी जो सीड्स जो लेते थे प्लांटर्स, वो लो प्राइस पर लेते थे, वो कम कीमत पर लेते थे। brought indigo seeds at low prices, hence the rails were always in debt, इसलिए वो रेल्स जो हमेशा कर्जे में ही रहे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन। तो ये तो हमने पढ़ा कि ये दो किस्म की यहाँ पर क्या कल्टीवेशन हो रही थी, एक है निज कल्टीवेशन, दूसरा है रैयत कल्टीवेशन। तो दोनों में आपने देखा कि क्या यानी कि दोनों में मैंने आपको समझाया कि निज कल्टीवेशन क्या है, और रैयत कल्टीवेशन में सीधा एक एग्रीमेंट होता है, सट्टा होता है, और यहाँ पर डायरेक्ट इनका कंट्रोल होता है, डायरेक्टली वो लुक आफ्टर करेंगे, किसमें, अपनी ज़मीन को लुक आफ्टर करेंगे। इसका या तो ज़मीन को खरीदेंगे, या इसके अलावा उसको यानी कि जो ज़मींदार से ज़मीन को रेंट पर ले सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं, और इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है वो खुद ही इसमें एम्प्लॉयमेंट डाल सकते हैं, यानी कि जो काम करने वाले हैं वो खुद ही यानी कि अपने पैसे देकर उनको काम में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है दोनों के दरमियान, रैयत काश्तकार के दरमियान, उसके अलावा प्लांटर्स के दरमियान। तो ये एग्रीमेंट के बाद तकरीबन से 25% जो है, एटलीस्ट कम से कम 25% जो यानी कि लैंड होगी रेत की, उस पर कैसा होना चाहिए, इंडिगो होना चाहिए। तो एग्रीमेंट आपने देखा क्या क्या होने के, प्लांटर्स क्या क्या देंगे, उसके बाद रैयत क्या क्या देंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें क्या क्या मुश्किल आते हैं, तो मुश्किल देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें सामने आ गई। तो निज कल्टीवेशन, इंडिया indigo could not be cultivated on fertile soils, but these indigo could only be cultivated on fertile soils, but these areas were densely populated, there was dense population आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिगो वहां पर सो किया जाता था, वहां पर बोया जाता था, जहां पर क्या होता है, जहां पर जमीन जरखेज हो, तो वहां पर इंडिगो को बोया जाता था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जो भी जरखेज जमीन थी, वहां के आसपास जो एरिया थे वो डेंसली पॉपुलेटेड थे, वो एरिया जो वो डेंसली पॉपुलेटेड था, क्योंकि ये अक्सर होता है जहां पर आपको जमीन जरखेज मिलती है वहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है क्योंकि वो फर्टाइल होता है, इसलिए लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो यानी कि वीट दरकार होता है, या इसके अलावा जो राइस दरकार होता है, या मेज़ दरकार होता है, या वेजिटेबल्स हैं, या क्रॉप जो उनको दरकार होते हैं, वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। दैट्स वाई दे प्रेफर टू लिव इन दिस एरिया। तो इस तरीके से यहाँ भी क्या था, यहाँ भी यानी कि जरखेज ज़मीन इसके लिए थी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा क्या थी, ज़्यादा आबादी, वो गंजान आबादी वाले इलाके होते थे, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, ज़मीन को एक्सपेंड नहीं कर पाए on fertile, but these areas were densely populated, yeah, population was dense, but dense population, hence small plots could be acquired, इसलिए छोटे छोटे से प्लॉट्स के यानी कि छोटे छोटे से प्लॉट अवेलेबल होते थे जिन पर ये यानी कि इंडिगो लगा सकते, इस वजह से कि जो यानी कि जिस तरीके से उसको एक्सपेंड किया जा सकता है, इस प्रोडक्शन को एक्सपेंड नहीं कर पाए, क्योंकि एरिया ज़्यादा इनके अंडर इस्तेमाल में नहीं आया। वजह इसकी यह थी कि डेंसली पॉपुलेशन थी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको वैकेट करना, और उन्हें बाद में किया भी, जो कि इंडिगो की फैक्ट्री थी उसके आसपास जो लोग रहते थे, मोस्टली जो किसान रहते थे, तो उनको वहाँ से एविकेशन किया, वहाँ से उनको वहाँ से यानी कि भगा दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, उस एरिया को खाली कर दिया गया। किसके लिए खाली कर दिया गया, प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन के लिए खाली कर दिया गया। लेकिन उससे क्या होता था, उससे अक्सर तसादम होता था, लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था उनके दरमियान, और टेंशन बढ़ता ही था, तो टेंशन ज़्यादा ही हो जाता था, और ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। densely populated, hence small plots could be acquired,
दिस मेड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीच कल्टिवेशन। तो इस तरीके से नीच कल्टिवेशन हम देखेंगे कि ये उस जमीन को एक्सपेंड नहीं कर पाए, उस वजह से इंडिगो की प्रोडक्शन है वो भी एक्सपेंड नहीं हो पाई। द प्लांटर्स अटेम्प्टेड टू लीज द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। दे evicted peasants, जैसे आपने पढ़ा ऊपर, फ्रॉम दैट एरिया। उन्होंने कोशिश की कि हम इन एरिया से अब क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि चलो पहले उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट किया कि हम इसको ठेके पर दे देंगे, हम इसको ठेके पर देते हैं कि जो ज़मीन के किसी आसपास है वो इंडिगो फैक्ट्री के आसपास जो ज़मीन है उसको ठेके पर दे देंगे, और जो आसपास के लोग यहाँ पर क्या उनकी गुंजान आबादी थी तो उन किसानों को वहाँ से हटा दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे मुसीबतें और ज़्यादा हो गई, खड़ी हो गई, इससे टेंशन बढ़ गया, उसके कन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा हो गई। इससे इट क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन उनके दरमियान हो गया। सो a large plantation requires a large number of workers। तो दूसरी बात ये थी, एक और प्रॉब्लम ये थी कि आप अब जब ज़्यादा एरिया पर प्लांटेशन जब करते हैं, अब उन्होंने ज़्यादा एरिया पर प्लांटेशन करनी शुरू की तो उसके लिए आपको ज़्यादा वर्कर्स भी चाहिए, उसके लिए आपको ज़्यादा काम करने वाले चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पर थी कि जब ये ऐसा वक्त होता था, इंडिगो की काश्त का जब वक्त होता था, जब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता था, तो दूसरी तरफ से जो किसान होते थे वो किस काम में बिजी होते थे, वो राइस की काश्त में बिजी होते थे। तो ये कोइंसाइड था, कोइंसाइड का मतलब ये एक ही वक्त में आ रहा था। एक तरफ से आपको राइस की काश्त करनी है, दूसरी के तरीके से आपको इंडिगो की काश्त करनी है। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि आपको उसके लिए क्या है, वर्कर्स ज़्यादा चाहिए। तो वो काम में अपने काम में बिजी थे, क्योंकि राइस तो उनकी जो बेसिक नीड है, तो वो उसके बगैर जिंदा नहीं रहते हैं, वो तो रोटी का सवाल है। तो यहाँ से मुश्किलें खड़ी हो गई। अब ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते थे। A large number of workers work at indigo plantation coincided with the time। वक्त के साथ, क्योंकि एक ही साथ में ये हो रहा था। When peasants were busy with rice cultivation, hence mobilizing the labor for indigo cultivation was a difficult task। तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि दोनों एक ही वक्त में आ रहे थे, यानी कि जो राइस की काश्त थी तो वो उसी समय थी, उसी वक्त थी, और दूसरी तरफ से क्या था कि जो इंडिगो की काश्त थी वो भी उसी वक्त में आ रही थी। तो अब यहाँ से लेबर जो है तो उसको मोबालाइज करना बड़ा मुश्किल हो गया कि आप वहाँ पर काम करेंगे, आप वहाँ पर काम करेंगे। तो आप दोनों सूत्र में क्या है कि बड़ी नुकसान, दोनों सूत्र में नुकसान हो गया। विद द टाइम when peasants were busy with rice cultivation, hence mobilizing the labor for indigo cultivation was a difficult task। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर है, large scale niche cultivation requires many plows and bulls। आप जो लार्ज स्केल पर है तो आपको ज़्यादा वर्कर्स चाहिए जो इसमें काम करेंगे। एक और बात है, आपको ज़्यादा प्लो भी चाहिए, यानी कि जो हल है, यानी कि जो हल जोता जाता है ज़मीन में, प्लो उसी को कहते हैं, तो वो आपको ज़्यादा तादाद में चाहिए। और उसके अलावा जो बुल्स हैं जो उसको खींचते हैं तो वो भी आपको ज़्यादा तादाद में चाहिए। तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको भी हल करना था। सो लार्ज स्केल नीच कल्टिवेशन रिक्वायर्स मैनी प्लोज एंड बुल्स। इट वाज ए बिग प्रॉब्लम। तो ये बड़ी मुश्किल थी इसको हल करना। सो इससे कुछ रीज़न थे, ये वजूहत थी इसके कि टिल द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के आखिर में हम देखते हैं कि प्लांटर्स जो थे वो खुद तंग आ गए, वे नॉट विलिंग टू एक्सपेंड द एरिया, कि वो उसकी चाहत ही अब नहीं थी कि हम इसको एक्सपेंड करें। वो इंडिगो की प्लांटेशन जो है इस एरिया को जो है उसके अंदर जो एरिया उसको एक्सपेंड करें या इंडिगो प्लांटेशन को एक्सपेंड करें, तो उनकी जो विल है तो वो कमज़ोर पड़ गई। वे नॉट विलिंग टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीच कल्टिवेशन। तो और प्लांटर्स जो हैं तो वो भी आखिरकार तंग आ गए, क्योंकि जो ऊपर जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई उन प्रॉब्लम्स की वजह से कि वो भी तंग आ गए, और नतीजा ये निकल होगा कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो गई, या ये जो सिस्टम है तो वो ज़्यादा देर फिर चला नहीं। तो ये थे वो प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की किसके बारे में, कि इंडिगो प्लांटेशन, यानी कि इंडिगो जो कल्टिवेटेड, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। तो दो तरीके से हमने देखा कि इंडिगो कल्टिवेट किया जाता है, एक है नीच कल्टिवेशन, दूसरा है रेत कल्टिवेशन। तो नीच कल्टिवेशन बिल्कुल तफसील से मैंने आपको बताया, रेत कल्टिवेशन में मैं आपको तफसील, और इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, क्या क्या मुश्किल खड़ी हुई यहाँ पर, कौन कौन सी मुश्किल आ गई प्लांटर्स को, इसके अलावा जो पीजेंट्स यहाँ पर थे या कल्टिवेटर जो यहाँ पर थे उनके दरमियान क्या हुआ, या जो ज़मींदार थे, तो पूरा मैंने आपको बता दिया तफसील से कि क्या क्या मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो गई। तो इंशाल्लाह कल किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कल हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर टुडे।